ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਰਾਜਵੀਰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਚੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਚਰਚ ਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਥ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਚ ਹੋਈਏ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿ ਜੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਕਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਚਰਚ ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਆ। ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਰਾਜਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ। ਆਮੇਨ। ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾਵੋ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਨਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। आमेन। बड़ा बड़ा धन्यवाद खुदा के लिए जो आपकी लाइफ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
थैंक यू सिस्टर जी। अभी हम आगे आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर थैंक जी, यू। जय मिसी जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत पावरफुल। ओके, तो 1 तारीख को बहुत कुछ मिला था सिस्टर को और बहुत कुछ पूरा जैसा हो गया है। एक्सेलेंट। और कोई है 1 जनवरी का कुछ गवाही और किसी की है तो प्लीज, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पास्टर जी, मेरी गवाही है। तो आपने, खुदा ने आपके द्वारा मेरे पे प्रोफेसी किया था कि मैं ब्रोकन हार्ट लोगों के लिए मिनिस्ट्री करूंगी। तो कब कब था ये? 1 जनवरी को था? हाँ जी पास्टर जी, 1 जनवरी को था। हाँ, ओके। तो ये बात है कि मैं उन लोगों को बेशक चर्च में तो नहीं ला पाई, क्योंकि थोड़ा है इसमें मेरी भी कमी कह सकते हैं, लेकिन जो खुदा ने मुझे उस दिन वचन दिया था, पहले मैं अपनी ही जिंदगी से बहुत निराश होती थी, तो दूसरों को मैं क्या समझा सकती थी। लेकिन अब उस दिन से खुदा ने मुझे अपने राह के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और मैं बहुत लोगों को हौसला दे चुकी हूँ इस साल में। आमीन। और कई लोग तो बिल्कुल टूट चुके थे, जिनका खुदा के साथ कोई रिश्ता भी नहीं था। हालांकि वो लोग अपनी चर्च में नहीं आए हैं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को यूनाइट किया फिर से खुदा के साथ में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Yes, एक्सीलेंट, Pastor. हालेलुया। और एक प्रोफेसी हुई थी आपके लाइफ पे ना कि चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री के बारे में। वो कब कब थी आपके? कब दिया हाँ था वो? 1 जनवरी को नहीं दी थी? हाँ पास्टर जी, वो भी आपने दिया था, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री और ब्रोकन हार्ट लोगों के लिए मिनिस्ट्री में। लेकिन चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में तो अभी नहीं, खुदा ने अभी तक तो नहीं जाने दिया, रास्ता बन रहा है, लेकिन अभी ब्रोकन हार्ट से शुरू हाँ किया खुदा ने। हाँ, चर्च चर्च बंद पड़ी ना लॉकडाउन के दौरान, लेकिन आपको प्लानिंग में लगाया था ना मैंने एक बार, सही ना? हाँ जी पास्टर जी, लगाया था। हाँ हाँ, चलो हम्म, देखो, खुदा खुदा जो गल्ला करता है उसी हिसाब से फिर वो कामयाबी होती है, पूरा जी होता है। प्रेज लॉर्ड। और कोई है 1 जनवरी की गवाहियां? और कोई जय है? मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। हाँ राजवीर भाई बताओ। हैप्पी न्यू ईयर साਰਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। अब पास्टर जी, आपका था कि आपने मेरे को बोला था कि तुम पकड़ जो लोग होते हैं उनको पकड़ोगे, लोगों को। जैसे बोला मच्छियां पकड़ते थे लोग, पतरस था, मच्छियां पकड़ते थे, वैसे आपने बोला था कि आप लोगों को पकड़ोगे, तो मसीह के लिए अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो पास्टर जी, खुदा ने वैसे ही काम किया है। बहुत लोग थे जो आपको भी जानते थे, तो वो मेरे पहले फ्रेंड्स थे, ठीक है पास्टर जी। और मेरे बहन भाई भी थे जो चलो इंडिया में भी हैं अभी। तो कुछ लोग थे कि जो मेरी पुरानी लाइफ में थे, वो आए चर्च में पास्टर जी। मैंने आमीन। कोशिश किया, वो आए चर्च में, उनको खुदा ने बहुत ब्लेस किया। चलो वो अपनी उनकी सोच थी कि वो चले गए, बट वो काम हुए पास्टर जी जो आपने बोले थे मेरी लाइफ में। चलो मम्मा के साथ हूँ, हेल्पर बोला था आपने कि खुदा आपको हेल्पर देगा। सच में वो बात थी कि चलो मम्मा की थिंकिंग थी कि क्योंकि मैं मसीह में भी मम्मा की ओर से आया हूँ मैं, क्योंकि पहले मम्मा मसीह में आई तो फिर मैं आया मसीह में। मम्मा ने बहुत काम किया मेरे पे, दविंदर ब्रदर ने किया कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि भैया आप आओ चर्च में, आओ चर्च में। तो उनकी मम्मा की चलो प्रार्थना थी कि मेरे को छोड़कर ना जाए, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा। तो मैंने बहुत लोगों को देखा कि जो चर्च को छोड़कर गए हैं, जो होंगे चर्च के साथ, बट वो प्रॉपरली चर्च के साथ नहीं थे। अभी मेरी सोच भी आ रही है कि शायद मैं मम्मा को छोड़कर जहाँ फैमिली को अपनी को छोड़कर साइड पे रहने लग जाता लड़कों के साथ, तो शायद वहां पर मैं स्टेप डाउन हो जाता शायद। बट खुदा मेरे को यूज कर रहा है और यूज करना चाहता है। तो मेरी सोच है कि तभी इन लोगों को खुदा ने बोला कि नहीं छोड़ना। अभी देखो, मम्मा की मैडम बोल रही है मम्मा को कि तुम्हारा लड़का रह सकता है। सभी मेरे बहन भाई यहाँ पर जानते हैं कि ये लोग कितने स्ट्रिक्ट हैं, कि ये लोग कोई रिलेटिव भी आ जाता है ना तो ये लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो वहां पर मम्मा की मैडम बोल रही है कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे साथ रह सकता है। आमीन आमीन। हमें भी आने का रास्ता ओपन खुदा होता की लगता है। प्लानिंग थी जो मेरी लाइफ में थी, मेरी लाइफ में है। तो
मुझको लगता है कि जो प्रोफेसी होती है चर्च में, या उनको उसको बिलीव करो। हमारा जो हम बिलीवर्स हैं उसको मानो कि ये होगी, उसको टाइम लग सकता है बट वो होगी। वो मेरे साथ पर्सनली हुआ है, तो मेरे को ये ज्यादा मालूम है। यही थी मेरी गवाही थी पास्टर जी। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। और कोई है 1 जनवरी की गवाही? ओके, कोई नहीं है तो आगे जाएंगे। ओके, अगर आपकी कोई भी इस साल की गवाही है, लास्ट साल ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜਗਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। नहीं, किसी को फोर्स नहीं करेंगे हम। अगर वो उनको मौका है अभी ना, तो नहीं 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 बोलने का है तो फिर किसी को फोर्स नहीं करेंगे। ये उनकी फ्रीडम की बात है, फ्रीडम से करने का, खुदा की महिमा के लिए। ओके, तो अगर आपकी कोई भी गवाही, कौन? एक मिनट कर गया। हेलो हेलो, जय मसीह ब्रदर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। सुनो भाई, न्यू लुक, न्यू सब न्यू डाला आपने फेसबुक पे, बताओ क्या जी न्यू है अभी? हाँ, आपने मेरे पर प्रोफेसी की थी ना, वो जब पे फायर आपको दूसरे सुबह तो को मैं याद तो नहीं इतना इतना टाइम क्यों लिया आपने? मैं देख रहा था कौन कौन आ रहा है, बाद में मैं आऊंगा ना। चलो, माफ किया। तो आपने मेरे प्रोफेसी की थी कि आपका सब कुछ चेंज होगा लाइफ में, आपको नई जिंदगी, नया हार्ट में, सब कुछ नया हुआ मेरी जिंदगी में। और सचमुच में खुदा ने वो कुछ किया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी लाइफ में सब कुछ नया किया है, नया हार्ट दिया है। जैसे आपने बोला था कि आपका नाम चाहिए राजा, मैं सचमुच में आज राजा हूँ, झूठ नहीं। ये बिल्कुल खुदा ने वो किया है जो आपने बोला था कि आपका सब कुछ चेंज होगा लाइफ में, आपको नई जिंदगी, नया सब कुछ मिलेगा ना, वो सब कुछ मिला है। और जैसे आपने मेरे पास वीडियो पे, मैं देखता हूँ फेसबुक पे वीडियो, जब मैं ज्यादा ना वीडियो देखता हूँ मैं फेसबुक पे निकाल पे वो क्लिप, जहाँ पे आप बोलते हैं कि आपका हार्ट का ऑपरेशन, और सचमुच खुदा ने हार्ट का ऑपरेशन किया, नया हार्ट दिया। वो पत्थर का दिल निकाल कर करना, खुदा ने मुझे सचमुच मांस का दिल दिया है। जैसा आपने कहा सब कुछ वैसा ही हुआ है मेरी लाइफ में। आज सचमुच खुदा ने मुझे राजा बनाया, जो आपने बोला था ना रानी का राजा बनेगा, सचमुच में आज राजा हूँ मैं। आमेन आमेन। बहुत बहुत बढ़िया गवाही। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे मेरा मन में था ये 1 जनवरी का प्रोग्राम फेसबुक पे पोस्ट किया गया था, तो मैं सोच रहा था ओ माय गुडनेस, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देखूंगा, और फिर मुझे भी पता चलेगा किसके किसके ऊपर खुदा ने क्या गल्ला किया था, किसकी जिंदगी के ऊपर। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन ये मेरा मन में है, जब थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो फिर मैं भी देखूंगा और फिर सुन लूंगा कि क्या खुदा ने गल्ला किया था। क्योंकि याद रखने को बहुत मुश्किल होता है। हम पूरा साल किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देते रहते हैं खुदा से, तो मुश्किल होता है सब याद याद रखने को। लेकिन फिर भी खुदा अभी अभी गवाही का माहौल बना रहा है। हालेलुया। तो और कोई है 1 जनवरी का, प्लीज, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको कुछ खुदा ने बड़ा बड़ा कुछ गवाही बनाई है आपके लाइफ में इस 2020 में, आपकी पर्सनल गवाही, ओके, इधर उधर नहीं जाएंगे हम, आपकी पर्सनल गवाही, तो प्लीज एक शॉर्ट में बताने का, लंबा नहीं करने का, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे, तीसरा हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा मीटिंग का। मुझे पता है बहुत कुछ लोगों का लाइफ में बहुत कुछ बड़ा किया है खुदा ने, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी किसी को बताने को, लगता है मुझे। सब शांति में, वाह, क्या हो रहा है?
जय मसीह पास्टर जी। हाँ जय हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। हैप्पी न्यू ईयर सारे नो। मेरा गवाही है दिसंबर का है, इस दिसंबर का, लास्ट दिसंबर। हाँ तो जो मैंने अपना डेली का काम करता हूँ, सैलरी के लिए मैंने अपने खुदा से मांगा था, हे परमेश्वर कि जो मेरी सैलरी है वो बढ़ जाए। तो मैंने विश्वास रखा परमात्मा से, क्या परमेश्वर मैं आपको बोलूंगा, मैं अपने बॉस को नहीं कहूंगा भी मेरी सैलरी बढ़ाओ। आमीन। तो मुझे मेरे बॉस ने 17 तुम्हारी जो सैलरी है डेली की 50 वो बढ़ा दी है, वो जो बढ़ाई है 10 दिसंबर से स्टार्ट है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर का हमारे सिर पर बहुत हाथ है, कभी भी इस साल में कोई भी तंगी नहीं आई। परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पे रहा। जो लॉकडाउन था, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने दी परमेश्वर ने। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन आमीन। और मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ, मुझे पता है आप मेरे पे दोष नहीं लगाएगा। आपकी फैमिली और आप और बहुत लोग हैं चर्च में जो दसवंत देने में बहुत बहुत वफादार है, और खुदा आपको ब्लेस कर रहा है। जैसा आपको दसवंत देने के हिसाब विच वफादारी दिखा रहा है, तो खुदा उसी हिसाब से भी आपको ब्लेस कर रहा है। तो मुझे पता है आप लोग बहुत बहुत चर्च का साथ देते हैं। और भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा ओके, ताकि उनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। और आप चर्च के साथ है, और चर्च का जो खुदा का जो खुदा मांग रहा है वो आप दे रहे हैं खुदा को, तो खुदा आपको ब्लेस भी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आमीन आमीन। और कोई? मैं गवाही देना चाहूंगा पास्टर जी। एक दविंदर, मेरी नए साल की नहीं है, लेकिन जैसे आपने बोला कि पूरे साल की अगर कोई गवाही है तो उसकी, तो मेरे पे 2 बार पास्टर माइक ने भी लास्ट एनकाउंटर भी प्रोफेसी किया था, और एक बार फिर जब डस्टन आया था उसने भी प्रोफेसी किया था लास्ट ईयर। तो उन्होंने प्रोफेसी किया था क्योंकि मैं सोच रहा था इधर से जाने को, मूव करने को उस टाइम। तो टाइम मुझे बोला था कि अगर खुदा का प्लान आपके लिए इधर ही है कुछ ना कुछ, तो वेट करो इधर ही। तो उस टाइम मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अभी जब मैंने दोबारा लास्ट ईयर वीजा अप्लाई किया था 2019 में, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि सितंबर 2020 तक का वीजा आपको दिया जाएगा। तो उस टाइम मैंने सोचा चलो सही है। तो उन्होंने मुझे लेकिन सितंबर का बोल के वीजा मेरा जून तक ही रखा, 9 मंथ का। तो उसके बाद फिर जब मैं गया जून में अप्लाई करने को, तो क्योंकि मैं प्रार्थना में था, ये प्रोफेसी भी थी, प्रार्थना में भी था बहुत, तो मैंने बोला चलो अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे 2-3 सब्जेक्ट रह रहे थे उस टाइम। तो वो कॉलेज वाले बोले कि आपकी इमिग्रेशन ने सीधा हमें बोला है कि आपको वीजा नहीं दे सकते अभी हम, क्योंकि आपके 5 साल ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। तो मैंने बोला लेकिन मेरे अभी सब्जेक्ट पड़े हैं। तो वो बोले हम ज्यादा से ज्यादा उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन दे दें, मीन्स के जनवरी 2021 तक का आपको ज्यादा से ज्यादा ये एक्सटेंशन दे सकते हैं वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जैसा भी लग रहा है आप करो, तो मैं ये सब्जेक्ट पास करूंगा। तो फिर 2021 में मैं देखूंगा जनवरी मंथ में कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो अभी जब मैं उधर गया, मैंने हाफ फीस जो मेरे 6 मंथ सेमेस्टर की बनती थी, मैंने वो पे की, और 6 मंथ की वीजे के लिए इमिग्रेशन को अप्लाई कर दिया था कॉलेज वालों ने। तो अभी मेरे कॉलेज वालों का कॉल आया रिसेंटली, लास्ट वीक की बात नहीं है, इसी मंडे की बात है, मंडे की बात है। मंडे और ट्यूसडे शाम पे मैंने उधर कॉलेज को गया, मंडे की बात है, हाँ मंडे को मैं कॉलेज गया हूँ, और उनका मुझे कॉल आया कि आपकी पिंक स्लिप रेडी है, लेके आओ। तो मैं प्रार्थना कर रहा था मॉर्निंग में,
तो मैंने पहले सोचा, मैंने बोला चलो किंग फिलिप का क्या करने का, भी 1 मंथ का तो एक्स्ट्रा वीजा होगा, मैक्सिमम जनवरी तक बोला था उन्होंने। मैंने बोला चलो किंग फिलिप लेके क्या करूंगा, तो फिर मैंने सोचा प्रार्थना, मैंने बोला चलो नहीं मैं जाऊंगा, देख का पिंक स्लिप तो लेके आऊं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि पिंक स्लिप बदल के आई है, चेंज होके आई है। तो मैं उधर गया, तो मैंने बोला मैम मेरी पिंक स्लिप आई है तो मुझे चाहिए वो। तो उन्होंने मुझे पिंक स्लिप दिया। पिंक स्लिप देखकर उन्होंने मुझे बोला, कहने कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया। तो बोले आपका हमने फाइल पूरी रेडी करके जनवरी तक की दी है और आपसे पैसे भी उतने लिए, लेकिन इमिग्रेशन ने आपको वीजा जून 2021 तक कैसे दे दिया। तो कॉलेज वाले भी हैरान है, मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज को रेडी कर रहा था, फीस को कैसे क्या करने का है। लेकिन उन्होंने जानते कि शायद मेरा वीजा जो जून 2021 को पे होगा, और मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने आधी फीस पे करके 1 साल का वीजा लिया होगा, और मुझे मिला है वो। ये खुदा का प्लान है। प्रोफेसी जो पास्टर माइक के द्वारा फिर डस्टिन के द्वारा हुई है, शायद हो सकता है कि जो खुदा ने मेरे लिए बुलाहट रखी है इधर, हो सकता है मेरे लिए इतनी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बड़ी गवाही है। मुझे ये वचन याद आ रहा है, मैथ्यू 6:33 में लिखा है कि seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you। खुदा का राज का पीछा करो और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो खुदा आपको देगा। और मैंने देखा है कि ये आपके लाइफ में हो रहा है और होता ही रहेगा। जैसे आप खुदा का राज का पीछा करते रहेगा तो फिर खुदा खुद ही आपका पीछा करेगा। हालेलुया। आपको हमें सब खुदा का पीछा करने का है और फिर खुदा हमारा पीछा ऑटोमेटिकली करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मूव करेंगे। और कोई है 2020 की गवाही? अगर 21 का भी है तो बताने का। हाँ, इसका आवाज आ रहा है, गला ओपन करो सही तरीके से। हेलो जय मसीह दी पास्टर जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जय मसीह दी। परमजीत बोल दी मैं। हाँ परमजीत, बताओ 2020 की गवाही, आपकी पर्सनल गवाही। ओके हेलो। मेरे घर भी मिल गया जहाँ पे मेरी बेटी की गौरव मनदीप की। हाँ, उसके पास पहले जॉब भी नहीं थी, 1 साल से वो बिल्कुल काम पे नहीं थी, तो उसकी आरडी भी नहीं आ रही थी, वो आरडी भी आ गई उसकी, उसको जॉब भी मिल गई है। तो बहुत पैसे वाली जॉब मिली है, बहुत अच्छी जॉब मिली है। तो खुदा ने बहुत अच्छे काम किए मेरी लाइफ में, बहुत अच्छा किया सब उसकी लाइफ में। तो हम बहुत खुश हैं उसके लिए, खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका भी, आपने प्रेरित की, जो भी खुदा ने उसको बहुत ब्लेस किया है। मैं सभी पास्टर आपका भी सारे ग्रुप का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह दी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लिए महिमा। हालेलुया। बेटी को बोलो खुदा के लिए 10 देने को मत बोलने को। ओके, और ब्लेस हो जाएगी वो। प्रेज मैंने लॉर्ड। उसको बोला, मैंने कहा मैं तो हाँ, नहीं देती नहीं, थी, मैं उसको भी बोला हाँ नहीं, दसवंत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि दसवंत हम देंगे तो फिर हमारी भलाई हो जाती है, क्योंकि ये जो खुदा का हक है ना, हमारे लिए वो हक नहीं है, खुदा के हक के हिस्सा होता है। इसलिए हम लोगों को विनती करते हैं कि वो दसवंत देने को खुदा को। एक भी पैसा दसवंत का या चर्च में जो जाता है वो किसी के जेब में नहीं जाता है। वो चर्च का जो अभी सब एक्सपेंसेस खर्चा करते हैं उसके लिए जाता है। एक भी खर्चा किसी को नहीं हम देते हैं। जो आगे का जो लोग हैं उनको नहीं मिलता है, या नहीं मैं लेता हूँ या लंदन टीम लेती है, कोई नहीं। एक्चुअली हम आके खुदा खुदा के लिए, चर्च के लिए पैसे हम डालते हैं। बहुत कुछ खर्च होता है और जो
जो लोग जो आप लोग हैं वो आप सब वफादारी से दसवन देते हैं और चर्च का खर्चा उठा रहे हैं। तो ये आपकी चर्च है और खुदा हाँ, बहुत पता कुछ है, मेरे को तो पता बड़े है, मैं कर तो रहा है। देती हूँ प्रॉपर। मेरे को, मैं एक ही छुट्टी होती है, मैं उसमें जाके जरूर, और कोई मैं काम करूँ ना करूँ, 10 बंद मैं जरूर डालती हूँ चर्च में। हाँ मैंने अपनी बेटी को भी हाँ बोला था, और तुम्हारा और दिल करता है, हाँ निकालो। सही है। और हमारा हमारा फर्ज बनता है कि हम 6 महीने में आप लोगों को हिसाब किताब दे सके। ये मेरी इच्छा है। तो लास्ट वीक ब्रदर सनी ने ये लास्ट 6 महीने का हिसाब किताब रेडी किया। तो जब चर्च ओपन हो जाएगी तो हम नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे तो कितना पैसे आए लास्ट 6 मंथ्स, और ये पैसे किस लिए हम इस्तेमाल किया, कैसे अंदर आए और कितना बाहर गए और किस लिए बाहर गए। एक एक का रिसिप्ट हमने रखा है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि हमारा इंडिया में जो होता है गोलमाल पैसे के बारे में, तो निकोसिया चर्च में ऐसा हो जाएगा। सबको पता है, दविंदर को पता है, अमनदीप को पता हाँ, है, आपको क्योंकि पता है। हमारी चर्च भी इतनी हाँ बड़ी थोड़ी हाँ है, थोड़ी सी अपने भी जरूरतें हाँ भी पूरी बिल्कुल, हाँ थोड़ा ही पड़ता होगा, पैसा नहीं पूरा बन सही है। पड़ता होगा, क्योंकि पास्टर पता ही। पास्टर लोग भी उनके हाथ में पैसे रखते हैं और फिर बहुत कुछ करते हैं। तो हम ऐसे नहीं करते। मैं तो मुझे पता नहीं होता है पैसे कितने आते हैं कितने जाते हैं, मतलब वो बताते हैं मुझे, लेकिन ये सब उनके हाथ में है। अच्छे लोग हैंडल कर रही है पैसे की बात। और एक एक रिसीट, एक एक खर्चे के लिए जो हम शॉपिंग करते हैं वो उसका रिसीट नंबरिंग करते हैं हम, नंबर गिनती करते हैं। गिनती मतलब 1 2 3 4 ऐसा हम लगाते हैं। तो कोई भी हमें पूछेगा ये नंबर 1 का क्या चक्कर है, किस लिए ये स्पेंड किया था, क्या क्या बाय किया था, क्या खरीदा था, तो हमारे पे सही सही ऑर्डर से सब रिसीट सब है। तो कोई भी कुछ भी सवाल पूछेगा तो हमारे रिकॉर्ड में सब है। क्योंकि चर्च का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अभी जनवरी में, थोड़ा सा डिले किया लॉयर ने, लेकिन अभी जनवरी या फरवरी में पक्का चर्च का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 1300 यूरो का खर्चा था। तो लंदन चर्च से 850 मुझे खुदा ने, मुझे पास्टर ने जैसा दिया, और फिर और 450 का खुदा ने इस इंतजाम किया है। तो खुदा भी बहुत बड़ा कर रहा है। तो 1300 रेडी हो गया है और अभी चर्च भी रजिस्टर हो जाएगी। तो चर्च जब रजिस्टर हो जाएगी ना, तो हमें ये हिसाब किताब और तेजी से और अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट, साइप्रस का गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वाले लोग आ सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं आपका हिसाब किताब का बुक्स दिखाओ, किताब दिखाओ, क्या कैसे पैसे आते हैं, कैसे खर्च करते हैं, ताकि ताकि हम ये गवर्नमेंट के साथ हम सही तरीके से हमारा रिकॉर्ड भी अच्छा अच्छा हम रखेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने काम पे लगाया लोगों को कि हम जब चर्च पहले दिन से चालू हुई है उस दिन से एक एक जो यूरो आया है चर्च में उसका हिसाब किताब हमारे पास है। और अभी मैंने फ्रंटलाइन टीम हेल्पर्स के ग्रुप में ये पूरा हिसाब किताब का मैसेज भेजा है और एनकरेजेस ग्रुप को भी भेजा, ताकि वो देखेंगे और उनको पता चलेगा कितना पैसे आते हैं, कितना पैसा बाहर जाता है और किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप लोगों का भी सबका विश्वास हमारे पे बढ़ जाएगा, ताकि हम दिखाएंगे आपको। तो ये एक थोड़ा सा हिस्सा है चर्च का भी। तो अभी हम जब चर्च चालू हो जाएगी तो हम ये नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे ताकि सबकी निगाह जा सकती है। अगर चर्च ओपन होने से पहले किसी को देखने का है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको खुद ही पर्सनली ये हिसाब किताब का ये सेंड भेज सकता हूँ। ओके, प्रेज द नहीं, लॉर्ड। बहुत विश्वास है 2020 आपको, हमें कुछ नहीं देखना है, हम बहुत विश्वास करते हैं आपके, हमें कुछ नहीं देखना है। नहीं नहीं, देखने का जरूरी है सिस्टर जी। चलो आप 20 बहुत विश्वास 20 करते हैं, आप खुदा को मानते हैं तो झूठ थोड़ी बोलोगे। जहाँ भी वो तो लगता है लगाना ही। सही है, सही है, सही है, लेकिन आपका भी फर्ज होता है देखने को और हक भी है आपको देखने को। ओके, आप चर्च की मेंबर है और आप हमारे साथ जुड़ी है। 2020 की गवाही और कोई है? 2020 की गवाही। बस यही थी मेरी गवाही तो।
नहीं, आपको नहीं पूछ रहा हूँ मैं, और किसी को। बहुत लोग हैं इधर, 30 के ऊपर लोग हैं, 30 के ऊपर लगता है। देखता हूँ कितने लोग हैं। 31 है। चलो मैं मुझे पकड़ के 31। और कोई है गवाही? गवाही 2020 की। गवाही नहीं है, ये तो हैरान की बात है। हेलो, हाँ जी पास्टर जी, जय मसीह दी। जय मसीह दी। बताओ। हैप्पी न्यू ईयर साਰਿਆਂ ਨੂੰ। हैप्पी न्यू ईयर। बताओ। हाँ जी पास्टर जी, मेरी ये गवाही है कि खुदा ने, आपने भी दुआ की सी, पूरी टीम ने भी की सी दुआ। खुदा ने मेरे लिए जॉब का बहुत बढ़िया इंतजाम किया वा। अभी मेरा वीजा नहीं लगा, 1 महीना देखेंगे, पर सैलरी भी बहुत बढ़िया वा। खुदा ने मेरी सोच तो वध के मैनू खुदा ने इंतजाम किया मेरे लिए बहुत वधिया। मैं खुदा का भी धन्नवाद करदी हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्नवाद करदी, पूरी टीम का धन्नवाद करदी। हालेलुया। थैंक यू। शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू सो मच। और कोई है? जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह